اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم نے نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ وہ مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہید بے نظیر آباد نواب شاہ پہنچیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ آصف علی زرداری سے ان کی والدہ محترمہ کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم مرحومہ کی مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، صلاح الدین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، بتائیے گا وزیر اعظم کی کراچی میں کیا مصروفیات رہیں گی؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج جو ہے وہ کراچی پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت کی۔ اس کے بعد وہ جو ہے ان کی جو ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے وقت میں جو سربراہی کر رہے تھے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ جو ہے کنور نوید جمیل، وسیم اختر اور وفاقی وزیر امین الحق تھے۔ تو اب سے کچھ دیر قبل ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب جو ہے ان کی سے اب مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات جاری ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے وفد میں حریث تگیجا اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد اپنا دورہ ختم کر کے ٹھیک ہے صلاح الدین، اس بارے میں اپڈیٹ کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مضبوط بحریہ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی پاسنگ آؤٹ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پرامن بقائے باہمی اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ تربیت حاصل کرنے والے دوست ممالک کے کیڈٹ بھی اپنی افواج میں مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ خواتین کیڈٹس کی شمولیت میں ملک کی دیگر خواتین کے لیے مثال ہوگی۔ In peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. It is truly heartwarming to note that Pakistan Naval Academy is extending quality training services to cadets from friendly countries. I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. It signifies their innate strength and confidence to step into the seafaring realm. They serve as role models for young Pakistani girls. پی این اے کراچی میں تربیت پانے والے ملکی اور غیر ملکی کیڈٹس کو ان کی محنت کا ثمر مل گیا۔ نیول اکیڈمی میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ وزیر اعظم نے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آج انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ وکیل نے حاضری معافی کی درخواست جمع کرا دی۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو فرد جرم کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف 15 کلو منشیات برآمدگی کا چالان جمع کروایا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے شہباز شریف کو آئینہ دکھا دیا۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چین نے امداد فوج کے کہنے پر دی ہے، شہباز کے کہنے پر 100 روپے نہیں ملتے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ 15 روز سے غریب کے خلاف گلا گھونٹ بجٹ جاری ہے، لیکن آئی ایم ایف اب بھی فیصلہ نہیں کر رہا۔ مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی۔ سپر ٹیکس صنعتوں کو اور 10 سے 40 ہزار دکانوں کو فکس ٹیکس ظلم ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ اب سانس لینے پر ہی ٹیکس لگنا باقی ہے۔ سیاسی لوٹوں کو ادائیگی ڈالرز میں کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم سندھ بھر میں بلدیاتی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات منتقل نہیں کیے۔ اپنی ٹویٹ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میری سندھ واسیوں سے اپیل ہے کہ اتوار کو بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دے کر سندھ سے زرداری مافیا کا صفایا کریں۔
पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में धांधली की कोशिश की जा रही है। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पूरा जोर लगा रहे हैं। PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा धांधली के लिए तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 17 जुलाई को PTI ही कामयाब होगी। इलीगल इम्पोर्टेड हुकूमत और खुसूसन पंजाब का गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आला इब्न वज़ीर आज़म, उसकी ये कोशिश है कि वो पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों के चक्कर लगवाए, ताकि 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हमजा शहबाज ने इन 20 सीटों के ऊपर लाजवाल किस्म की धांधली का प्रोग्राम बनाया हुआ है और प्री पोल रिगिंग अपने अरूज पे है इस वक्त। इन 20 हल्कों में अपने नून लीगी कैंडिडेट को ठप्पे लगा के 20,000 बैलेट पेपर देने का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन ये जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, इमरान खान साहब की स्ट्रगल के साथ हम सब खड़े हैं और इंशाल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की आवाम इन 20 हल्कों में इनको शिकस्त फाश देगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने ट्वीट किया है, शहबाज शरीफ सिवाय शोबाजियों के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो गया, डीजल की कीमतों खाद पर 2 से 10% टैक्स से किसान बदहाल हो गया, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, दालें महंगी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला कल होगा। 4 डिवीजन्स के 14 अजला में अवाम मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 143 टाउन कमेटीज़, 14 ज़िला कौंसल, 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 45 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में इंतखाबात होंगे। 1000 से ज़ायद उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। निचली सतह तक मुंतकली। सिंध में कल बल्दियाती इलेक्शन के लिए मैदान सचेगा। पहले मरहले में 4 डिवीजन्स के 14 अजला में अवाम हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में बल्दियाती नुमाइंदों का चुनाव होगा। 143 टाउन कमेटीज़, 14 ज़िला कौंसिल में वोट डाले जाएंगे। 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 45 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में भी पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 6277 नशस्तों पर इंतखाब होना था, तहम 1000 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 135 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए अब 752 नशस्तों पर टाकरा होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 107 उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत चुके। 687 नशस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 26 जून को लाड़काना जिला के 46 यूनियन काउंसिल्स, 20 यूनियन कमेटीज, 6 म्यूनिसिपल टाउन कमेटी समेत 310 वार्ड्स पर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां सियासी मुहिम उरूज पर है। तहम शहर के चंद इलाके और शहरी अब भी तवज्जो का मुंतज़िर हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शिराज महमूद पठान ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हैं और उससे मुतालिक बता रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। देखें, लाड़काना में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात का मार्का होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, JUI, PTI और दीगर जमातें हिस्सा ले रही हैं। लाड़काना में जो है वो सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस वक्त मैं हैदरी टाउन में यूनियन काउंसिल 5 में मौजूद हूं। यहाँ का जब हमने विजिट किया है तो कोई उम्मीदवार हमें यहाँ पर कैंपेन करता हुआ दिखाई नहीं देता, ना ही झंडे हैं, ना ही कोई कैंपेन है, क्योंकि यहाँ पर इलाका है वो बिल्कुल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, ना गलियाँ हैं, ना रोड है, ना रास्ते हैं। और जो इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पाइप लगाकर निकासी आपका सिस्टम यहाँ पर किया हुआ है। बिजली नहीं है और लोग जो हैं जानवरों की तरह की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर इलाका मकीन है, उनसे हम जानते हैं चाचा कैसे ज़िंदगी इतनी गंदगी में, इतनी जो है वो बिजली भी नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस अपनी जानवरों की तरह भी गुजारा कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई भी आते हैं, वोट इलेक्शन मांगते हैं, वोट दें, मगर ये हालात देखकर भी कभी किसी ने कोई हमारे ऊपर कोई मेहरबानी, बस यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया शिराज महमूद पठान आपका। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बैलेट बॉक्स और पेपर समेत दीगर सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। भोटकी से बरकत बलोच, जैकबाबाद से इलाही बख्श और नवाबशाह से मंजूर अहमद ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। वाले से जिला घोटकी की 5 तहसीलों में दर्ज वोटों की बात की जाए तो 8,68,000
68,311 वोट दर्ज हैं और यहाँ पर इन वोटों पर जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उम्मीदवारों की तादाद 1524 थी, जिनमें से 51 जो हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 1473 उम्मीदवार इस वक्त इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो ज़्यादा तादाद है 2 जमातों की, जिसमें GTA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी इनमें शामिल है। तब अगर मौसम की बात की जाए तो शदीद गर्मी है, गर्मी की बायस जो अमला है उन्हें डिप्लॉयमेंट में और सामान की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्युनिसिपल ग्राउंड में, जहाँ पे बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स और दीगर सामान जो है वो इनके हवाले किया जा रहा है। मेरे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद, आइए इनसे पूछते हैं कि इंतजाम के हवाले से इन्होंने कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसे ही हमें मैसेज मिला कि आपको पहुंचना है सामान के लिए, हम सुबह सवेरे 8 बजे पहुंच चुके थे। उसके बाद हमें जो भी सामान चाहिए था वो आसानी से मिल गया। जी बिल्कुल, कल ज़िला शहीद बी नज़ीराबाद या डिवीज़न शहीद बी नज़ीराबाद के तीनों अजला में शहीद बी नज़ीराबाद, नौशेरा फिरोज, सांगड़ के जो पहले मरहले में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। जनाब क्या कहेंगे बुनियादी मसाइल को लेकर, पीने का साफ पानी हो, ड्रेनेज हो, सफाई हो, क्या कहेंगे आप? जनाब पहली बात तो ये कि पीने के साफ पानी का तो यहाँ शहरी तस्वर ही नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हालात से गुजरे, अरबों रुपए की लागत से एक स्कीम शुरू की गई थी, वो भी नाकारा होगी। और उसके बाद गलियाँ, रोड, रास्ते और ड्रेनेज का पानी वो गलियों में तालाबों की तरह खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि नवाबशाह शहर के अंदर अरबों रुपए की लागत से जो है वो पीने के साफ पानी की स्कीमें जो है वो लगा दी गई और लोगों के पास एक बार फिर मौका आया है को अपने नुमाइंदों का बेहतर चुनाव करें और अपने बुनियादी मसाइल हल करें। जी, अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 65 दिन में हल्का बंदियों का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरखास्त मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी हो गया है। तवक्को है विफाक और तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करेंगे। ये फैसला सामने आया है, ताउन ना हुआ तो कमीशन केस दोबारा खोलने की दरखास्त दे सकता है। काबीना ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद 110 करने की मंजूरी दे दी है और काबीना फैसला का गेजेट नोटिफिकेशन शाया हो चुका है। अदालती फैसले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 65 दिन में हल्का बंदियों का हुक्म दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।